आज दिल्ली चलो आंदोलन के पहले दिन हम 25 किलोमीटर ख़त्म कर चुके हैं और आज पहले दिन हमारे साथ जुड़े आमा चोचोवी, जो कि लद्दाख की एक हस्ती हैं, एक महिला लीडर हैं जिन्होंने लद्दाख के हर आंदोलन में हिस्सा लिया है। इनकी उम्र 87 साल है और 25 किलोमीटर अभी तक चल चुकी हैं। हम इनको सलाम करते हैं और लद्दाख के संरक्षण के लिए ये इनका योगदान है। इसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब जुड़े हैं। जुड़े रहिएगा हमसे। Good morning world from the mountains of Ladakh, Trans-Himalayas. We are on a long march to New Delhi from Ladakh, covering roughly 1,000 kilometers with a pace of roughly 25 to 35 kilometers every day. We are currently marching at altitudes of roughly 3,500 meters above sea level, but we'll be soon crossing passes that are higher than 5,300 meters and crossing snowy mountains, glaciers, and hot and cold climate along the way. Reaching New Delhi on 2nd of October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, who showed us the path of peaceful protest and long marches like these. In this ecologically fragile region of Ladakh, we are facing many impacts of climate change. Our glaciers are melting away, and not quietly so. They are causing flash floods and droughts alternatingly. So we seek safeguards to the fragile ecology and the unique indigenous peoples' cultures here that has taken stewardship of these mountains over millennia. And for that, we seek your support at two levels. Save Ladakh, save Himalayas. One, at local level, we seek support from the government of India to fulfill their promises to safeguard this indigenous peoples region under the 6th schedule of the Indian Constitution, which was promised to us for the last 5 years, but it's yet to be fulfilled. And then globally we seek people of the world to adopt climate-friendly lifestyles, low-carbon lifestyles, especially in the big cities, so that if you live simply in the big cities, we in the mountains may simply live. So during this movement, during this march, we want to appeal to citizens of the world to also please change their lifestyles, simplify their lifestyles, and support movements like I Live Simply in Ladakh, and to support movements like Mission Life, started by the Indian Prime Minister to appeal to the citizens of the world to adopt low-carbon lifestyles. We look forward to seeing you all in New Delhi and connecting to you on 2nd October. Till then, goodbye, Jai Hind, Jule. तो आज ये तीसरा दिन है हमारे पद यात्रा का दिल्ली की ओर और 3 दिन में हमने 75 किलोमीटर किए हैं। अब कल हम तखलंगला, जो कि बहुत ही ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 17,500 है, उस पर चढ़ेंगे, जहां बहुत ठंड होगी, शायद बर्फ़बारी भी। ये सब पीड़ा हम उठा रहे हैं एक सच्चाई के संदेश को भारत के सुदूर सीमा से दिल जो भारत का है, दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। तो रास्ते में जिस गांव में भी हम पहुंच रहे हैं, इस तरह से पारंपरिक स्वागत फूलों के साथ यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में लोग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें आदर कर रहे हैं,
वो आदर कर रहे हैं इस भावना का, इस आंदोलन का, जो कि लद्दाख के इन वादियों के संरक्षण के लिए है और सच्चाई के संरक्षण के लिए। तो हम बताना चाहते थे कि हर गांव से हर बूढ़ा, हर बूढ़ी, बच्चा, भिक्षु सब इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं और ये लद्दाख के लोगों की आवाज़ है, इसे सुनी जाए, हमारी यही विनती है। वैसे ही हर गांव में लोग इस आंदोलन में जो भी खर्चा आ रहा है उसके लिए वो ना सिर्फ लोगों को नाश्ता जलपान करा रहे हैं, बल्कि हज़ारों रुपए देकर आगे के आने वाले रास्ते के लिए वो खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये इस तरह से पूरी तरह जनता द्वारा समर्थित और फंडेड एक अभियान है। आपको याद होगा, वादा किया था लद्दाख के लोगों के साथ कि आप इस नए यूटी के लोगों को, उनकी संस्कृति को, उनके पर्यावरण को, इन ग्लेशियर्स को, इन वादियों को संरक्षित करेंगे 6वें शेड्यूल में। आज उसी वादे की याद दिलाने के लिए हम सब चल पड़े हैं। लगभग 100 लोग हैं और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं हर गांव से, हर इलाके से, और आगे शायद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से सब लोग जुड़ेंगे भारत में सच्चाई को स्थापित करने के लिए, ताकि जो वादे किए जाते हैं उनकी आदर की जाए, वरना भारत में सच्चाई की विजय नहीं बल्कि पराजय होगी। इसी के लिए हम ये पीड़ा उठाकर लेह से निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर आपसे मिलने के लिए। नमस्कार, सलाम सभी को। आज हमारे सफ़र का चौथा दिन है और आज हम आखिरी गांव जो लद्दाख का है, रुमचे गांव, वो पार कर चुके हैं। लगभग 80 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है। अभी बारिश हो रही थी जो कि बर्फ़ में बदल सकता है, और आप वहाँ अगर देखें तो मौसम काफ़ी बादलों से भरा है। जो हाई पासेस हैं, ऊंचे दर्रे हैं। तो कल सुबह हम 5 बजे लगभग, जो दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है तगलंगला, 17,500 फुट की ऊंचाई पर, उस पर चढ़ेंगे। उम्मीद है कि मौसम थोड़ा बेहतर हो, नहीं भी हो तो यही हमारी परीक्षा है। हम अपने ऊपर पीड़ा उठाकर, दुख उठाकर एक संदेश देना चाहते हैं भारत को, भारत की लोकतंत्र को, भारत की सरकार को, कि लद्दाख के लोग भी लोकतंत्र चाहते हैं। लद्दाख के लोग भी अपने फैसले इस नाजुक हिमालय को बचाने में खुद करें, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा करें। ये संदेश देने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। Hello guys, everybody. Ladaख से मिमांगला जुले. Thank you for support. नमस्ते जुले. नमस्ते जुले. नमस्ते. हमारा 4 मांगे को सपोर्ट करो. Thank you. जुले. Thank you. Hi जुले सभी. सभी को नमस्कार सपोर्ट करने के लिए. जुले. जुले. बाय बाय. जुले, हम चले दिल्ली. जुले. बाय. नमस्ते. बाय. जुले. जुले. तो फिर मौसम बदल गया। थोड़ी ही देर पहले आप देख रहे थे कितना बारिश हो रहा था, बर्फ़ का सा समा था। अभी फिर पूरी तरह धूप हो गया है। यहाँ इन ऊंचे दर्रों पर मौसम पल पल में बदलता है, और नहीं बदलता है तो बस हमारा पक्का इरादा कि हम इस सत्य के मार्च पर दिल्ली तक चलेंगे। और बदले भी क्यों, इस काफिले में जिसमें कि लगभग 105 लोग हैं, आधे से ज़्यादा पुरुष सहभागी जो हैं वो भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी।
और मेरे साथ अभी चल रहे हैं रिटायर्ड सूबेदार स्तानबा जी, जो इससे पहले 21 दिन के अनशन पर भी रहे थे मेरे साथ, और बाकी सारे भूतपूर्व सैनिक। ये एक तरह से दर्शाते हैं कि ये बहुत ही देश प्रेम से प्रभावित मार्च है, और हमारे सैनिक जहां सर्विस में रहते सीमा की सुरक्षा करते हैं, तो वहीं सेवा के बाद वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए भी काम किए जाते हैं। और दूसरी बात, सत्य की सुरक्षा के लिए, भारत में सत्य की विजय हो, वादों का इज्जत किया जाए। जब भी हम किसी से वचन देते हैं तो उस वचन पर फिर पूरा काम भी हो। यही हमारी उम्मीद है कि हमारे दिल्ली पहुंचने तक लद्दाख के साथ जो वादे किए थे, वचन दिए गए थे, यहाँ की पर्यावरण की संरक्षण के लिए, यहाँ की संस्कृति की संरक्षण के लिए 6वें शेड्यूल में वो सब वादे पूरे होंगे। और हम और लद्दाख की पूरी जनता, यहाँ के भूतपूर्व सैनिक जो कि हजारों में हैं, वो सब निकल पड़े हैं सत्य की संरक्षण के लिए और पर्यावरण की संरक्षण के लिए। Hello people of the world. Today we are crossing one of the highest passes in the world, Taklangla, at 17,482 feet. From this height we want to send an urgent SOS message to the world leaders and citizens. We, the tribal indigenous people of Ladakh, are on a climate march of 30 days covering 1,000 kilometers, crossing some of the highest passes, snowy mountains and treacherous treks. As we go along, we want to draw your attention by sharing our story of impacts of climate change on the fragile ecologies of high Himalayas. Well, talking of climate change, the weather on these high passes change every 10 minutes. It's now snowing as we descend. Now, in these high Himalayas, our glaciers, you can see there, are melting very fast, leaving behind flash floods and droughts. These glaciers are our lifelines and they are going away, and soon we will become climate refugees. Therefore, we want to make two appeals to the people of the world and the leaders of the world from the heights of this pass. Firstly, a local appeal to the Prime Minister of India to please safeguard these fragile ecosystems of the high Himalayas under the 6th schedule of the Indian Constitution, thereby giving the right to take stewardship of these ecosystems to the local indigenous people. Our second appeal is a global appeal to the world leaders and citizens of the world to please cut down on carbon emissions as urgently as possible, because we have very little time left. Here I have a climate clock prepared by the best scientists in the world, and we have less than 5 years left before things go irreversible and out of control. Only 5 years or less. And yet, our heads of state, when they set their targets for carbon neutrality, if we see on this list, it's less than what needs to be done. I'm sad to see that China and my own country, India, the two giants on this planet, have targets that are way beyond what is necessary. So we want to appeal to the world leaders and the citizens to please reconsider these targets to more urgent timelines, like Finland has done. And to all the journalists, social media, citizen journalists, we appeal to you to please take this message to every person in your circles and every country on this planet, so that it finally reaches the head of state of all the countries on the planet. Thank you very much. Save Himalaya! Save Ladakh! Save Himalaya! Save Ladakh! Save Himalaya! Save Ladakh! Save Himalaya! तो देशवासियों और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज हमारा 10वां दिन है और हम रोड के हिसाब से 47 किलोमीटर चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और ये छरब नाला है जिसे हमने देख रहे हैं पार किया पैदल। और ये देख रहे हैं आप मेरे पैरों में किस तरह से छाले पड़े हैं। ये छाले
दर्द नहीं बल्कि एक अपील है कि देश में वादों की इज्जत रहे, सच्चाई की कीमत रहे, क्योंकि जो लद्दाख के साथ वादे हुए हैं उन्हें हम पूरा करने की आग्रह करने, याद दिलाने दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो कहते हैं जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो भारत के देशवासियों से ये कहना चाहूँगा, और ये मेरा दूसरा पैर है जिसके छाले आप देख रहे हैं, अगर मैं काटूं तो निकल के आते हैं इस तरह से। जल्दी मिलेंगे 2 अक्टूबर को दिल्ली में। जुले, जय हिंद।